Let us begin the virtual celebration of the National Sports Day by seeking the Almighty's blessing. Our chief guest, Mrs. Lakshmi Rani, lighting the lamp by our very respected principal, sir. And other dignitaries present to grace this occasion. Now, offering of garlands over the picture of Major Dhyan Chand. Carrying forward the tradition of our school by offering saplings to the guests present. Good morning to one and all present over here in this online celebration of National Sports Day. Games and sports are an integral part of our lives and should be inculcated as part of our curriculum. So, in order to understand the importance of National Sports Day, I would like to invite Mr. Avinash Gupta, TGT Physical and Health Education, to enrich us with his words. Life is more fun if you play games. A very warm and healthy good morning to all of you. Today on this special occasion, I would like to wish you all a very happy National Sports Day. Now I am going to share some information through this presentation. Just play, have fun, enjoy the games. The topic of this presentation is Importance of National Sports Day. The highlights of the presentation are Importance of National Sports Day, a brief introduction about hockey wizard Major Dhyan Chand, and National Sports Awards. Importance of National Sports Day. India celebrates the day today, 29 August, the birth anniversary of the legendary hockey player Major Dhyan Chand, who was born on 29th of August 1905. The National Sports Day is also known as the Rashtriya Khel Divas. On this day, President Ramnath Kovind confers the National Sports Award, National Adventure Award, Arjuna Award, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award, Dronacharya Award, and Dhyan Chand Award to recognize the exceptional achievements of Indian sportsperson. The National Sports Day is observed every year to spread awareness about the importance of sports and games in the life of every individual. Sports play an important role in everyone's life, be it athletes, sportspersons, students, youth, or adults. It is essential for physical as well as mental development. Considering the importance of sports, the government has launched several schemes and initiatives in the field of sports and games. Have a look at some of the schemes. Fit India Movement. The scheme will be launched on 29th of August on the occasion of National Sports Day 2019 by Prime Minister Modi himself at Indira Gandhi Indoor Stadium, New Delhi. Next scheme is Khelo India scheme. The Khelo India scheme was launched in 2016 after the merger of three schemes: Rajiv Gandhi Khel Ratna Abhiyan, Urban Sports Infrastructure Scheme, and National Sports Talent Search Scheme. The scheme aims to boost mass participation of youth in annual sports games and competitions. Khelo India National Program for Development of Sports Scheme aims to achieve objectives of mass participation and promotion of excellence in sports. The scheme strives to promote sports for all as well as sports for excellence.
The scheme was revamped in the year 2017 with an aim to mainstream sports as a tool for individual and community development, economic development, and national development. Now, a brief introduction about hockey wizard Major Dhyan Chand. Many of us have seen one of the greatest players in their respective sport playing like Sachin Tendulkar in cricket, Cristiano Ronaldo in soccer, Roger Federer in tennis, Tiger Woods in golf, Michael Schumacher in F1, and many more. We love their playing style and we have watched their many matches. But I think we are unlucky because we have never seen Major Dhyan Chand playing hockey. Dhyan Chand was born on 29th of August 1905 in Allahabad. He was the elder brother of another hockey player, Roop Singh. He was born to mother Sharda Singh and father Sameshwar Singh. His father was in the British Indian Army and he played hockey in the army. Dhyan Chand had two brothers and Roop Singh. Of his father's numerous army transfers, the family had to move to different cities and such as Chand had to terminate his education after only 6 years of schooling. The family finally settled in Jhansi, Uttar Pradesh, India. Dhyan Chand is widely considered to be the best hockey player of all time. His goal scoring ability was phenomenal, and the opposition defenders were often made to look like sitting ducks in front of this wizard from India. Major Dhyan Chand was an Indian field hockey player who is arguably the greatest field hockey player of all times. He is known for his extraordinary goal scoring feats in addition to earning three Olympic gold medals in 1928, 1932, and 1936 in field hockey during an era where India was the most dominant team in hockey. His influence extended beyond these victories as India won the men's field hockey gold medal in 7 out of 8 Olympics from 1928 to 1964. He is known as the Wizard. Control, Chand played his final international match in 1948, having scored more than 400 goals during his international career. The Government of India awarded him the second highest civilian honor of Padma Bhushan in 1956. His birthday, 29th of August, is celebrated as National Sports Day in India every year. Major Dhyan Chand was often called as the wizard by the legends for his magical control over the ball. In Berlin, Adolf Hitler wanted to buy his stick after watching the final match against Germany. Dhyan Chand mesmerized the Japanese by playing with a walking stick when a woman in the stands asked him to play with it. In some places, opposition team players went on to the extent to break his stick to check whether there was any special thing inside the stick, as the ball always tends to kiss his stick. Overall, he scored 1,000 goals in a career spanning over 2 decades. During his era, there was nothing to record the brilliant play of this magician. If it had recorded, it could have used by this generation as a tutorial lesson. Such was the sheer intelligence he had. Dhyan Chand learned to play hockey while he was in the Indian Army, which he joined at the age of 16. He used to practice during night times and he had to do it under moonlight, no floodlights at that time. He was selected to the play for the Indian hockey team on the tour of New Zealand in 1926 after playing for 4 years at domestic level. Indian hockey team made its Olympic debut in 1928 Amsterdam Olympics and went on to win the country's first ever Olympic gold medal. Major Dhyan Chand was the top scorer of the tournament in just 5 matches with his brilliant piece of game plan. The team received a grand welcome from the authorities and fans. India team went on to win the next edition of Olympics, also which was held in Los Angeles in 1932. India defeated the host USA with a margin of 24-1 in the final match, which was a world record at that time. After that, Indian hockey team had tours to Europe only to be victorious at each place that they had landed.
For the next season of Olympics, Major became captain. This time games were held in Berlin in 1936. The result was same in Berlin too, as India clinched the gold medal again. Dhyan Chand scored 6 goals in the final match against Germany, in which India had won with a margin of 8-1. At that time, Indian hockey team was a dominant force in international arena. Australian great Don Bradman met Dhyan Chand at Adelaide in 1935. After watching him play, Bradman remarked, "He scores goals like runs in cricket." Major Dhyan Chand spent his last days in his hometown of Jhansi, Uttar Pradesh, India. Though having great legacy, he died on 3rd December 1979 in AIIMS, Delhi, in a general ward, which is a tough fact to digest. In final days, Dhyan Chand felt sad as he was short of money and was badly ignored by the nation. 2 months before he died, Dhyan Chand made a statement that shows his state of mind. "When I die, the world will cry, but India's people will not shed a tear for me. I know them." He was cremated at the Jhansi Heroes Ground in his hometown after some initial problems in getting clearance. His regiment, the Punjab Regiment, accorded him full military honors. His autobiography Goal was published by Sports and Pastime, Chennai in 1952. Now, National Sports Award. These are the National Sports Award. राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड. The Rajiv Gandhi Khel Ratna, officially known as Rajiv Gandhi Khel Ratna Award in Sports and Games, is the highest sporting honor of the Republic of India. The award is named after Rajiv Gandhi, former Prime Minister of India, who served the office from 1984 to 1989. It is awarded annually by the Ministry of Youth Affairs and Sports. The recipient is selected by a committee constituted by the ministry and is honored for their spectacular and most outstanding performance in the field of sports over a period of 4 years at international level. The award comprises a medallion, a certificate, and a cash prize of 7.5 lakh. Winners of Rajiv Gandhi Khel Ratna 2020. Today, on the occasion of National Sports Day, Rajiv Gandhi Khel Ratna Award will be awarded by our Honorable President Ram Nath Kovind to the following players or sportsperson: Sri Rohit Sharma in cricket, Sri Mariappan T in para athletics, Miss Manika Batra in table tennis, Miss Vinesh in wrestling, Miss Rani in hockey. Now, next award is Arjuna Award. The Arjuna Awards are given by the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, to recognize outstanding achievement in sports, started in 1961. The award carries a cash prize of 5 lakh, a bronze statue of Arjuna, and a scroll. Arjuna Award winners of 2020. Arjuna Award will also be awarded today by our President to the following players or sportsperson: Atanu Das in archery, Shiva Keshavan in luge, Datti Chand in athletics, Satvik Sairaj Raniki Reddy in badminton, Chirag Shetty in badminton, Vishesh Bhriguvanshi in basketball, Ishant Sharma in cricket, Dipti Sharma in cricket, Laulina Borgohain in boxing, Manish Kaushik in boxing, Savant Ajay Anand in equestrian, Sandesh Jingan in football, Aditi Ashok in golf, Akash Deepika Thakur in hockey, Deepak Nivas Hooda in kabaddi, Sarika Kale in kho-kho, Suyash Jadhav in para-swimming, Manish Narwal in parachuting, Sandeep Chaudhary in para-athletics, Saurabh Chaudhary in shooting, Manu Bhaker in shooting, Madhurika Patkar in table tennis, Divish Sharan in tennis, Divya Karan in wrestling, Rahul Avare in wrestling, and Dattu Bhokanal in rowing. Next award is Dronacharya Award. The Dronacharya Award, officially known as Dronacharya Award for
Outstanding Coaches in Sports and Games is Sport Coaching Honor of the Republic of India, started in year 1985. The award is named after Drona, often referred as Dronacharya or Guru Drona, a character from the Sanskrit epic Mahabharata of ancient India. The award comprises a bronze statue of Dronacharya, a certificate, ceremonial race, and a cash prize of 5 lakh. Winners of Dronacharya Award 2020. Dronacharya Award will also be awarded today by our President to the following coaches. First category is Lifetime category. The winners are Dharmendra Tiwari in archery, Purushottam Rai in athletics, Shiv Singh in boxing, Romesh Pathania in hockey, Krishan Kumar Huda in kabaddi, Vijay Bhalchand Munishwar in para-powerlifting, Naresh Kumar in tennis, Om Prakash Daiya in wrestling. The second category is regular category. The winners are Jude Felix Sebastian in hockey, Yogesh Malviya in Malkham, Jaspal Rana in shooting, Kuldeep Kumar Handu in wushu, and Gaurav Khanna in para-badminton. The next award is Dhyan Chand Award. India's highest award for lifetime achievement in sports is the Dhyan Chand Award, which has been awarded annually from 2002 to sporting figures who not only contribute through their performance but also contribute to the sport after their retirement. The National Stadium Delhi was renamed Dhyan Chand National Stadium in 2002 in his honor. Major Dhyan Chand remains a legendary figure in Indian and world hockey. His astounding skills have been glorified in various apocryphal stories and anecdotes. The award comprises a bronze statue of Dhyan Chand, a certificate, a ceremonial race, and a cash prize of 5 lakh. Winners of Dhyan Chand Award 2020. Dhyan Chand Award will also be awarded today by our Honorable President to the following persons. Shri Kuldeep Singh Bhullar in athletics, Miss Jinsi Phillips in athletics, Shri Pradeep Shri Krishna Gandhi in badminton, Miss Trupti Murungde in badminton, Miss N. Usha in boxing, Sri Lakha Singh in boxing, Sri Sukhvinder Singh Sandhu in football, Sri Ajit Singh in hockey, Sri Manpreet Singh in kabaddi, Sri J. Rajit Kumar in para-athletics, Sri Satya Prakash Tiwari in para-badminton, Sri Manjeet Singh in rowing, late Sri Sajin Nag in swimming, Sri Nandan P. Bal in tennis, and Sri Netarpal Huda in wrestling. And the next National Sports Award is Rashtriya Khel Protsahan Puraskar. Rashtriya Khel Protsahan Puraskar is the highest award to encourage involvement of corporate and sports promotion boards in the development of sports in the country, awarded to best firms or institute promoted games and sports, started in year 2009. The award comprises a trophy and a certificate. The winners of Rashtriya Khel Protsahan Puraskar 2020. Rashtriya Khel Protsahan Puraskar will also be awarded by our Honorable President today to the institute. The first category is Identification and Nurturing of Budding and Young Talent, and the winners are Lakshya Institute and Army Sports Institute. The second category is Encouragement to Sports through Corporate Social Responsibility, and the winner is Oil and Natural Gas Corporation Limited. And third category is Employment of Sportsperson and Sports Welfare Measures, and the winner is Air Force Sports Control Board. And the last category is Sports for Development, and winner is International Institute of Sports Management. Thank you. Thank you, sir, for your words. When we were young, we used to crave for playing outside, but as we grow up, this is compromised due to various constraints and especially in the situation we are in. So, I would like to invite our mentor and our guide, our very respected principal sir, Mr. P.K. Taylor, to enlighten us about the importance of games and sports. परम आदरणीय श्रीमती लक्ष्मी रानी मांझी, the great Olympian, archers,
और सभी मेरे साथीगण, प्यारे बच्चों और अभिभावकगण, आज ये पहला मौका है जब हम खेल दिवस को ऑनलाइन मनाने जा रहे हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमने सारे कोविड-19 की सिचुएशंस को दरकिनार करते हुए भी इस राष्ट्रीय खेल दिवस में खेल की भावना से ही हम राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने की ओर अग्रसर हैं। आप सभी का मैं केंद्रीय विद्यालय चितरंजन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मुझे याद जब करता हूं कि अभी हमने कुछ दिनों पहले 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्यारे बच्चों, 15 अगस्त 1947 का दिन सब याद करते हैं, लेकिन यही दिन इससे ठीक 11 साल पहले भी हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक दिन था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 15 अगस्त 1936 की। जगह थी बर्लिन और हॉकी स्टेडियम नंबर 2 रिचर्ड स्पोर्ट्स फील्ड में जो इतिहास रचा गया, उस इतिहास की मैं आपको बात बता रहा हूं। उस दिन बर्लिन, जो कि जर्मनी में है, का तानाशाह हिटलर अपने सभी सहयोगी के साथ इस अपेक्षा के साथ बैठा था कि आज हॉकी ओलंपिक के फाइनल में जर्मनी जीत करके एक इतिहास बनाएगा। लेकिन उसके मंसूबों पर पानी फेरा इस देश की सेना के लांस नायक ध्यानचंद ने। जी हां, वही हॉकी के जादूगर, महान खिलाड़ी जो बाद में जाकर के मेजर बने और मेजर ध्यानचंद के नाम से जाने जाते हैं, मैं उन्हीं के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। आज 29 अगस्त को 1906 में वो पैदा हुए और उन्हीं के जन्मदिन को हम उनकी 115वीं जयंती भी मना रहे हैं और देश का राष्ट्रीय खेल दिवस भी हम मना रहे हैं। जी हाँ, उस दिन उन्होंने जर्मनी को 8-1 से जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो देश के हॉकी टीम के कप्तान थे और ये लगातार उनका ओलंपिक में 3रा गोल्ड मेडल था। कप्तान बनाए जाने के बाद में जब ट्रायल मैच हुआ था तो भारत जर्मनी से हार गया था और भारत जर्मनी से हारने के बाद में नर्वस था, लेकिन ये ध्यानचंद ने देश की उस हॉकी टीम में जो निर्जीव सी हो गई थी में जान फूंकी और एक के बाद एक जीत दर्ज करती चली गई और फाइनल में हिटलर के अपने देश में उसके समक्ष भारत को ऐतिहासिक 8-1 की जीत दिलाई, जिसमें से 3 गोल कप्तान ध्यानचंद ने किए थे। जी हाँ, उस मैच के बाद हिटलर नाराज नहीं हुआ। वो ध्यानचंद के पास आया, पूछा आप क्या करते हैं हॉकी खेलने के अलावा, और जब ध्यानचंद ने कहा कि मैं सेना में लांस नायक हूं, तो उन्होंने उसको फील्ड मार्शल की पद की पेशकश कर दी कि आप जर्मनी में आ जाइए और यहाँ फील्ड मार्शल बन जाइए। जी हाँ, फील्ड मार्शल बहुत बड़ा सेना में पद होता है, लेकिन उस सेना नायक ने कहा कि मैं मेरी मिट्टी में, मेरे देश में केवल सिपाही के पद पर ही काम करके अपना देश के लिए ही कुछ करना चाहता हूं, मैं जर्मनी नहीं जाऊंगा। आज सलाम करते हैं हम उन सब खिलाड़ियों को जो देश के लिए जज्बे के साथ जीते हैं और उसके लिए खेलते हैं। 1928 में एम्स्टर्डम में, 1932 में लॉस एंजलिस में और 1936 में बर्लिन ओलंपिक में ये सिलसिला लगातार जारी रहा और भारत ध्यानचंद की कप्तानी में गोल्ड मेडल लाता रहा। 1956 में इस वीर सपूत को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उसके प्रशंसकों ने बार बार उनके लिए भारत रत्न की मांग भी की, लेकिन भारत रत्न उनको नहीं मिल पाया। हो सकता है कि आने वाले समय में उनको इससे नवाजा जाए। खेल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यदि हम खेलों की दुनिया से जुड़े हैं तो हम इस जानते हैं कि हमारे साथ
पढ़ाई के साथ साथ खेल कितने ज़रूरी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसा आप जानते हैं, फिट इंडिया मूवमेंट, खेलो इंडिया, SBSB स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, लगातार हम इसमें प्रयास कर रहे हैं और खेलों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जो खेलता है, वो फिट है, वो इस कोरोना की लड़ाई में भी सक्षम है। इसलिए मेरा सभी अभिभावक जो इसको देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, उनसे भी मेरा आग्रह है कि आप अपने बच्चों के लिए कम से कम 1 घंटा खेल के लिए, योग के लिए जरूर निकालें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास है। यदि आप स्वस्थ मन की बात करते हैं तो वो पढ़ाई के लिए भी ठीक है। आप पढ़ाई में तभी आगे निकल पाएंगे जब आप स्वस्थ शरीर को वास करते हैं। अभी भी केंद्रीय विद्यालय चितरंजन की मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे जो टॉपर्स हैं, पिछले साल के टॉपर्स हैं, वो खेलों में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं सभी ऐसे बच्चों को बहुत हार्दिक बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने पिछले सत्र में भी रीजनल और नेशनल लेवल पे स्कूल का प्रतिनिधित्व किया है और मेडल हासिल किया है। पिछले साल सायन डे ने 2 ब्रॉन्ज मेडल विद्यालय के लिए जीते और वो 12th क्लास ह्यूमैनिटीज के भी टॉपर रहे। तो कहीं भी पढ़ाई खेलों को या खेल पढ़ाई को बाधित नहीं करते, सबका अपना अपना रोल है। अभी हम फिट इंडिया फ्रीडम रन बना रहे हैं और इसमें आप सब लगातार दौड़ लगा रहे हैं। आप दौड़ लगा रहे हैं और ये नियमित आप ढाल लें। और मुझे याद है बचपन में क्लास 2 या 3 में हमारे लिए हिंदी में एक पाठ था, नित्य 3 मिनट दौड़िए, और वो दौड़ने का महत्व अब समझ में आता है। यदि आप दौड़ते हैं, सबसे सामान्य एक्सरसाइज है, आप दौड़ते हैं, महत्वपूर्ण है, आप स्वस्थ रहते हैं। आप दौड़ लगाइए और देश की जो ये फिट इंडिया मूवमेंट है इसमें भागीदार बनिए। आज के दिन बच्चों, माननीय राष्ट्रपति जी देश में खेल रत्न पुरस्कार और अर्जुन अवार्ड देते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड भी देते हैं। आप खेलों की दुनिया में भी आगे जाइए। भारत में कई खेल खिलाड़ी हुए हैं। आप चाहे विराट कोहली या तेंदुलकर की बात ही मत कीजिए, आप हिमा दास या मीराबाई चानू की बात मत कीजिए। ऐसे बहुत से अनगिनत खिलाड़ी हैं जो देश की प्रतिष्ठा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, नए नए कदम बढ़ा रहे हैं। हो सकता है आप में से ही कल की PV सिंधु हमारे यहाँ बैठी हो सकता है आप ही में से कल का MS धोनी हमारे बीच में हो। तो आप खेलों की प्रतिभा को रोके नहीं, आगे हमेशा बढ़ते रहिए, खेलते रहिए और स्वस्थ रहिए। मैं हमारी मुख्य अतिथि जो कि ओलंपियन रही हैं और तीरंदाजी में इन्होंने विश्व में वर्ल्ड कप में कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और देश के लिए मेडल जीता है, उन्होंने भी हमारे लिए समय निकाला है। और अभी हम आगे जाकर के इनसे भी वार्तालाप करेंगे और इनके विचार जानेंगे कि किस तरह से इन्होंने देश के लिए मेडल कमाए हैं, इसके लिए कितनी इन्होंने मेहनत की है। तो आप इनको सुनेंगे। हमारे सभी शिक्षकों को, सभी बच्चों को और सभी अभिभावकों को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत। आप खेलते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। Thank you, sir, for your inspiring words. Now, I would like to invite Mrs. Sudeshna Sharkal to inspire and enrich us on the value of fitness in today's world and how fitness and wellness can be achieved through games and sports. Good morning, everyone. Most respected Principal Sir, esteemed parents, learned colleagues, and my dear students. First of all, I must thank Principal Sir, Mr. P.K. Taylor, for giving me this opportunity to speak on the topic fitness and wellness through sports. Now today, 29th of August, each year we celebrate it as National Sports Day in honor of the legendary hockey player Dhyan Chand.
We are celebrating it since 2012. Now coming to the topic fitness and wellness through sports. For many of us, those who are actively involved in games and sports also have better health and well-being. Playing sports can help reduce body weight, control fat, and fight depression and anxiety. But before that, we must understand the difference between fitness and wellness. Now, the term wellness is taken in a much more broader aspect and refers to our entire life. Mental, spiritual as well as physical. But fitness refers to only the physical health. It focuses on strength, flexibility, body composition, etc. Sports here plays a major role and helps us to reach out our fitness goals. Sports have hidden health benefits. Besides feeling better mentally, it protects us from heart disease, stroke, obesity, diabetes, high blood sugar, pressure, improves the quality of our life. Wellness, on the other hand, is multidimensional, including spiritual, physical, emotional, career, intellectual, environmental, social, and so on. I mentioned just now about wellness being a multidimensional aspect. Wellness is an active process of making choices towards a healthy life. A balanced diet is also needed to be able to maintain a healthy brain. We have to eat well, sleep well, exercise well, etc., which refers to wellness of the entire life. Earlier, health was defined as only merely absence of disease. But now people have stressed on fitness as being healthy. One who is fit is considered as healthy. Engaging in different sports activities each week helps students to focus on schoolwork as well as help them to lead a very happy and healthy life. While academic success is no small feat, students who participate in at least one extracurricular physical activity are proved to reap more benefits than those who do not exercise at all. Through sports, students are able to accumulate a host of skills and activities like leadership, teamwork, confidence, and self-reliance. They are the big character focuses. Creative and critical thinking skills are developed on the playing field as players have to take quick decisions and solve problems created by their opponents. We can also term it as problem-solving skills. Time management is also a very important skill, and it is inculcated through different sports activities where students learn to balance between schoolwork, sports, and family life. So fitness, wellness, and sports all go hand in hand. Quality health and fitness and multidimensional wellness brings discipline to mind and body and prepares each and every person to face the challenges of life in this vast and competitive world successfully. So goes these famous sayings that fitness is not a destination but a way of life. Fitness is not about being better than someone else. It is about being better than you used to be. So the best never rests. Thank you. Thank you, ma'am, for your words. Now I would like to request Mrs. Jahan to share her views on this fitness and wellness and how is it important in our daily lives. Hello everyone, respected principals, learned colleagues and my dear children. Every year 29th of August is celebrated as National Sports Day to mark the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand,
who is regarded as nation's greatest hockey player of all time. On this occasion, I want to express my views on fitness and wellness through sports. For maximum realization of human potential, interplay between health, wellness, and fitness is essential. Health, according to WHO, World Health Organization, refers to a state of complete mental, physical, and social well-being, and not just in absence of infirmity or diseases. The dimensions of health include physical, emotional, intellectual, spiritual, and social. Wellness is defined as the condition or state of being in good mental and physical health. Every aspect of our wellness is affected by stress. The dimensions of wellness include social, spiritual, emotional, occupational, environmental, physical wellness, and intellectual well-being. Physical fitness refers to being in good physical conditions, sometimes referred to as being in condition or in shape. The health-related factors to physical fitness include muscular strength, muscular endurance, cardiovascular endurance, flexibility, and body composition. The interaction between health and wellness is quite essential in our lives because of many benefits that encapsulates. They include reduced risk of premature death, reduced risk of cardiovascular diseases, decrease in resting heart rate, regulation of normal blood pressure, decreased in body fat, and reduced risk of diabetes. Other benefits we gain include joint stability, strengthened bone, increase in muscle mass, increase in resting metabolism, improved core strength, improved balance and coordination, improved body image and self-esteem, reduced depression and stress management. During recent decades, there has been a progressive decline in the level of physical activities in the people's daily life in developed countries. For a majority of people, little physical effort is involved and many more in their work, domestic chores, transportation, and leisure. WHO estimates that with the exception of sub-Saharan Africa, chronic diseases are now the leading cause of death in the world. WHO cites 4 non-communicable diseases that makes the largest contribution to mortality in low and middle income countries, namely cardiovascular diseases, cancer, chronic respiratory diseases, and diabetes. Sports and physical activities has long been used as a tool to improve mental, physical, and social well-being. Physical inactivity is a major risk factor associated with a large number of lifestyle diseases. Sport projects that specifically focus on health outcomes generally emphasize. We all know a healthy mind lives in a healthy body. For sure, playing sports is generally a fantastic way to improve our fitness and health. Many of us may not feel at home pounding away on a treadmill or working up a sweat in the gym, but we will happily chase a ball around endlessly while playing a game of some sort. For most of the people, taking part in sports will improve our general health and well-being. There are plenty of reasons why we should become involved in sports, with the reduced body fat, bone strengthening, improved stamina, and flexibility being some of the reasons why we should take up a sport. The following are just some of the many health and fitness benefits of starting out a new sport, which we hope will apply to whatever sport we opt for. Playing sports helps reduce body fat or controls our body weight. Sports allow us to gain the satisfaction of developing our fitness and skills. Sports can help
us fight depression and anxiety. It allows us to challenge ourselves and set goals. Playing sports helps strengthen bone. It helps aid coordination, balance, and flexibility. Many sports can help improve stamina and concentration. Sports allow us to experience the highs and the lows of both winning and losing. Through sports, we will meet people with a similar interest to ourselves and are likely to gain many new friends. Sports are a great way for families to get exercise together. If we are a sporty, then we are more likely to have a healthy lifestyle. So, at last, I would conclude by saying involving in sports not only changes our body, it changes our mind, our mood, and our attitude also. Thank you. Have a nice day. Thank you, ma'am, for your words. Now I would like to call upon one of our student, Bhavya Chaudhary of 10A, to say something on COVID-19, fitness at home, and share her feedback and experience with us. Most Honorable Chief Guest, Guest of the Occasion, Honorable Principal Sir, respected teachers, and my dear schoolmates. Good morning. For the first time in the history of KVS, due to pandemic, we are celebrating online annual sports day today. COVID-19 is declared as a pandemic by WHO and it is rapidly spreading around the world. We all are confined inside our houses, which has also resulted in reduced physical exercise in our lives. It has also developed mental pressure, stress, and anxiety in the minds of both adults and children. As we all know, schools play an important role in every child's life. It is not only a temple of learning, but also a place of well-being which ensures both physical and mental exercise. Schools ensure regular fitness activities which help the child to build self-confidence and relieve stress. Now also, it is playing an important role in diverting our minds from stressful situations as we have shifted to virtual classrooms which has engaged us in a positive way. But it has also resulted in an increase in the screen time. Hence, the necessity of physical and mental exercise has become necessary as immunity is the only prevention for COVID-19 right now. For fitness, diet is as important as exercise. So, we should start avoiding junk food as they can also be a carrier for diseases. To cope up with COVID-19, lung capacity has to be increased with the help of breathing exercises. And it has rightly been said by Sri Ravi Shankar, health is not a mere absence of disease. It is a dynamic expression of life in the terms of how joyful, loving, and enthusiastic you are. Yoga helps us in all-round development as it improves health, gives mental and physical strength, protects us from injury, and detoxifies the body. And our school encourages us to participate in yoga activities, which is aligned to the vision of our Honorable Prime Minister and other policy makers. Life is at a crossroad where we don't know which way to move. We always search for a lamp post to get the sense of direction. And our school has played an important role in giving positive directions to all of us, not only in the terms of healthy mind, but also in the terms of healthy body. This annual online sports day will pave a great path for encouraging students to be physically fit and mentally alert. It is a great initiative on the part of our teachers to contribute in the life of students by arranging Run for Unity, International Yoga Day and sports classes in the evening, which will ultimately improve our immunity and give us the strength to fight against COVID-19. Thank you. Thank you, Bhavya. Moving forward, I feel extremely proud to introduce to you all our guest speaker, Mrs. Lakshmi Rani Majhi. An excellent archer, an Olympian, and has represented Jharkhand and particularly our India in several national and international events. It's a great privilege to introduce to you all about such an excellent personality. Mrs. Majhi has participated in several events like European Grand Prix,
16th Asian Championship, first and second stage of World Cup, third World Cup at Poland, Rio Olympics test event at Brazil, and has attained several laurels in the hat by achieving several medals in events like Senior National Archery Championship and winning gold medals in 10th SAF Games, 4th Asian Grand Prix and 4th stage of World Cup. नमस्ते, जोहार। मैं ओलंपियन लक्ष्मी रानी माझी, रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, टीचर्स, डियर स्टूडेंट्स। आज आप लोगों को सभी को मालूम है कि आज हमारा ध्यानचंद जी का जन्मदिन है। आज इसी के मौके पर हम लोग स्पोर्ट्स डे मनाते हैं और उसी के आज स्पेशली उसी के लिए आज जो ये दिन है उसी के लिए ही समर्पित किया गया है, क्योंकि जो हम ध्यानचंद जी हैं कहते हैं हमारा इंडिया का हम जादूगर है। एक जो हॉकी वो खेलते हैं उसके हाथ में वो जादू है। तो आज मैं आप लोगों को अपने बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगी, क्योंकि मैं आज मैं स्पोर्ट पर्सन हूँ एज ए, तो आप लोगों को थोड़ा स्पोर्ट्स के बारे में बताऊंगी कि मैंने ओलंपिक तक का जो मेरा सफर है वो कैसा रहा, किन परिस्थितियों से मैं उठ के जो ओलंपिक तक मैं खेलने के लिए गई हूँ, तो कैसे मैंने शुरुआत किया, कैसे नहीं किया, तो इस चीज में थोड़ा सा अपने लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगी। तो जैसे कि जो मेरे स्टार्टिंग है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स एक ऐसा चीज है कि खेलने के साथ साथ है आपका माइंड, आपका बॉडी, वो सब तो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। जैसे कोई बहुत सारे बच्चे लोग खेलते नहीं है, तो खेल मतलब एक हमारा लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, कोई भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं, स्पोर्ट्स हमारा लाइफ में बहुत जरूरी है। तो आप लोगों से भी हम निवेदन करते हैं कि अगर आप लोग भी है जैसे घर पे हैं, कोई भी आप थोड़ा सा एक्टिविटी कीजिए। आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ भी कीजिए घर पे, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन के दौरान अभी बाहर अभी ज्यादा अलाउड नहीं है। तो आप जितना भी घर के जगह में है आप उसी एरिया में आप जैसे योगा कर सकते हैं, मेंटल ट्रेन कर सकते हैं। उसी तरह से ही जैसे अभी के समय में हम लोग अधिकतर बाहर हम लोग कम जाते हैं, अपना मोबाइल, अपना टीवी, इसी में हम लोग अधिकतर खोए रहते हैं, लेकिन अपना बॉडी को, हेल्थ को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग सिर्फ खाते हैं और पढ़ते हैं, लेकिन अपना बॉडी को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते, क्योंकि बॉडी हम लोग को वैसे चीज है, अगर हम लोग बॉडी थोड़ा सा फिटनेस रखेंगे तो हम लोग का माइंड फ्रेश रहता है। आप कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए भी आप बहुत फुर्तीला आप रहते हैं खुद के लिए भी। तो जैसे आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए भी, तो आप अगर सुबह शाम जो आप एक्टिविटी करते हैं, कोई बहुत सारा बच्चा को देखते हैं स्कूल में हम लोग का रनिंग होता है, तो एक बच्चा होता है बहुत फुर्तीला होता है, वो कहीं भी इधर उधर बंदर जैसे उछलता है, लेकिन उसका ये नहीं कि वो बदमाश, वो नहीं है। एक्टिविटी वो उसका शरीर बहुत अच्छा है, फिट है, इसीलिए वो हर एक चीज में वो आगे है। उसका मतलब ये नहीं कि बदमाश है। और उसे जब दूसरे बच्चे हैं कि वो थोड़ा लो है, क्योंकि वो हर काम में थोड़ा लेजी रहते हैं, लेजी नहीं है क्योंकि वो स्पोर्ट्स में उतना एक्टिविटी नहीं रखते हैं। जैसे मेरा भी शुरुआत में ही ऐसे घर तरफ में मैं बहुत बदमाश बोलते हैं मुझे, और ऐसे में मैं बदमाश हुई ही, ऐसे बात नहीं है कि बचपन में मैंने ऐसे बहुत सारे खुरपाते किए हैं। बड़े लोगों को भी उन लोग के साथ खेलना, लड़ना झगड़ना, बच्चे लोगों के साथ भी बचपन से ही मेरा है कि स्पोर्ट्स में स्कूल से, या जैसे मेरे मामा लोग फुटबॉल खेलते थे, तो उन लोग जब खेलते थे तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी ये खेलना है। लेकिन जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ वहां पर स्पोर्ट्स का कोई एक्टिविटी नहीं होता। स्कूल में जो भी होता है तो हम हर चीज में पार्ट लेते थे। जैसे हम लोग का स्कूल घर वगैरह या घर के आसपास भी जैसे बच्चे लोग खेलते हैं ग्रुप में, तो वो सब में हर चीज, हम लड़का के साथ भी खेलते हैं। मम्मी मुझे बहुत डांटती थी, पापा तो एज उतना रहते नहीं थे, तो मम्मी ही मुझे बहुत डांटती थी, क्यों तुम उतना खेलती हो, लड़की हो, ऐसे बोला जाता है। लेकिन मेरा माइंड में था कि नहीं, मुझे खेलना है, कुछ भी चीज खेलना, मुझे अच्छा लगता था खेलना। जब हम लोग वहां से नरवा शिफ्ट हुए हैं, वहां एक्चुअली मेरा सिलेक्शन हुआ था, वहां पे हुआ था। तो वहां जब मुझे सिलेक्शन किया गया था तो मुझे आर्चरी के बारे में पता ही नहीं था। हाँ, तुम्हारा हाइट है। आज हम लोग के साथ कम से कम 6-7 बच्चे लोगों को हम लोग को हमारा हाइट चेक किया, तो हम लोग को साइड में बुला के बोला कि आप लोग आइएगा, आप लोग का कुछ टेस्ट लेंगे। हम लोग को टाटा में जब हम लोग को बुलाया गया, 15 दिन का कैंप था। 15 दिन का कैंप में हम लोग का जितना भी एक्टिविटी किया, उस समय मुझे ये भी नहीं पता कि आर्चरी क्या चीज के लिए
होता है, तीर धनुष पता था, लेकिन आर्चरी मुझे नहीं पता कि आर्चरी क्या होता है। वो नाम अलग है, तीर धनुष पता है, लेकिन कभी हम ओडेन क्या होता है या हम लोग का रिकव क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, वो मुझे पता नहीं था। जब मैं वहां पर गई थी टाटा में, तो मेरे साथ और भी बच्चे आए थे, कम से कम 500-600 आए थे। तो वहां से जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, उस दौरान हम लोग को बहुत सारा एक्टिविटीज दिया था। मैं रनिंग में भी पीछे थी, हर चीज में पीछे थी, क्योंकि वो सब एक्टिविटी होता नहीं था। हम बस नॉर्मल दौड़ते थे घर पे, लेकिन वहां जो हम गए थे हॉस्टल में, तो उस जगह पे हम लोग को जिस हिसाब से एक्टिविटी हम लोग कराया गया था, तो हम सोच रहे ये क्या है, ये मेरे लिए भी नया है। स्पोर्ट्स में पहले होता था कि आप अगर खेलोगे कूदोगे तो बोलते हैं कि बनोगे, खराब पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, यही पहले कहा जाता था। लेकिन अभी उसका अपोजिट है, अभी वो सब नहीं है। अभी खेल को भी उतना ही महत्व देते हैं जितना पढ़ाई होता है। तो उस समय जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 500 बच्चे में, तो उस समय हम समझ में नहीं आ रहा था कि हम जो स्पोर्ट्स में आए हैं वो क्या चीज है। तो एक हमारा जो सीनियर है वहां पर, उसने एक दिन वो लेके आया, हम मुझे खींचने के लिए दिया, मुझसे खींचा भी नहीं जा रहा था कि हम इस चीज के लाए हैं। तो वहां से जो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है, ऐसे नहीं कि मुझे बहुत इजीली मिला, उसमें बहुत लाइफ में उतार चढ़ाव मिला है मुझे, क्योंकि वहां पर मेंटल हम लोग को प्रेशर भी होता है। अगर जिस चीज के लिए हम कॉम्पिटिशन बोलते हैं कि स्पोर्ट्स में हमें सक्सेस नहीं होता, पहले फेल्योर से आपको सक्सेस की ओर जाना पड़ता है। इसीलिए कभी भी आप लोग एग्जाम लिखते हैं या किसी चीज के लिए तैयारी करते हैं, इतना जल्दी हताश कभी मत होइएगा। सब चीज आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका माइंड जैसे करेगा वैसे ही आपको करना पड़ेगा। वहां पर भी बहुत सारा ऐसी चीज है जो हम पहली बार हम खेलने के लिए गए, सिर्फ टीम में मेडल आया था, बाद बाकी जो मेरे साथ जो फ्रेंड थे वो इंडिविजुअल में लेके आया था। तो मुझे बहुत खराब लगा। हम सोचे हम इतना मेहनत करते हैं, इतना हम स्कोर करते हैं, मैं खुद प्रैक्टिस में, लेकिन क्यों मुझे वहां तक मिलता नहीं है। तो फिर वहां पर ऐसे होता है कि वहां पर नहीं, उन लोग हैं, हम नहीं कर पा रहे, क्या कारण है, नहीं मेरे से नहीं होगा, ऐसे मेरा माइंड में बहुत आया। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम जिन लोगों से मिलते थे वहां पर अच्छे लोग भी हैं, खराब लोग भी हैं। तो अच्छा लोगों से है मुझे सीखने को मिला, नहीं ये है कि एक पार्ट है। अगर हम फेल्यूर नहीं होंगे तो सक्सेस भी नहीं है, और वो मजा भी नहीं आता जब तक आप फेल्यूर नहीं होंगे। जब आप चैंपियन होते हैं, हार के जब चैंपियन होते हैं, तो उस समय आपको वो जीत का एहसास वो अलग होता है। और आप डायरेक्ट खेलने के लिए गए, आपने कभी फेल्योर का सामना नहीं किया है, डायरेक्ट आपको जीत मिला, तो उसका उतना वो खुशी नहीं होता है कि अरे हाँ मुझे तो मिल गया। आप उतना कभी कभी होता है कम प्रैक्टिस में या कम पढ़ाई में आप ज्यादा अचीव कर लेते हैं, तो उसका खुशी वो महसूस नहीं होता। लेकिन आप मेहनत करके जब ज्यादा मेहनत किए हैं और उसमें आपको जीत मिलने से क्या है ना, एक स्टोरी रहता है आपका उसमें भी कि नहीं मैंने जो इस चीज में जो मैंने मेहनत किया है, मैंने किन परिस्थितियों के दौरान मुझे मिला है, जो आप फेस किए हैं प्रॉब्लम, वो एक्चुअली आपका लाइफ का वो सीखने के लिए मिलता है। ऐसे नहीं कि वो फेल्योर है, उसी से ही है। उसी चीज में जो आपने जो बाधाएं जो आपके बीच में आया होगा, हो सकता है मेंटल होगा, या आप हो सकता है कि आपको जिस चीज के लिए आपको जरूरत होता है, किसी को पढ़ाई में जैसे होता है आप लोगों को भी ना कि पढ़ाई में भी प्रॉब्लम होता है, किसी को मैथमेटिक्स समझ में आता है तो उसी को होता है कि उसको घुमा के किसी को पढ़ाया जाता है तो उसको समझ में आता है। तो हम लोग को भी सेम वैसे स्पोर्ट्स में भी है। अब स्पोर्ट्स में तो आप देख ही रहे हैं कि स्पोर्ट्स में भी नाम है, फेम है, सब कुछ है, पैसा भी है, सब कुछ है। और एज ए स्पोर्ट जितना भी है, फैमिली का सब कोई को स्पोर्ट्स करना चाहिए। एज ए अभी तो बहुत सारे बीमारी है, अभी देख रहे हैं लॉकडाउन के दौरान या अभी जो कोविड-19 जो चल रहा है, अधिकतर उन लोगों को ज्यादा बीमारी हो रही है जो पहले से ही थोड़ा बीमार है, लेकिन स्पोर्ट पर्सन उतना है ही नहीं। अगर देखा जाए 100% में 99% सब कोई फिट है, और एक 1% जो इधर उधर है वो थोड़ा अनफिट है। लेकिन वही है कि अपने ऊपर आप ध्यान दीजिए। Ma'am, your journey as a sports person has been with a lot of achievements. But all our listeners would like to know your journey to the Olympics. मेरा इंटरनेशनल का पहला कंपटीशन था मलेशिया में। वहां जाने से पहले हम लोग का सिलेक्शन हुआ था कलकत्ता में। तो वो जो मेरा पहला जो एक्सपीरियंस था, उससे पहले हम स्टेट मीट और डिस्ट्रिक्ट ये सब तो हम खेले ही थे, लेकिन वो हम लोग का इंटरनेशनल के लिए हो रहा था। तो उसका जो प्रेशर था वो अलग ही था, और एक्साइटेड भी था क्योंकि उस समय हम नए नए थे। तो फिर मुझे खेलने जाना है तो फ्लाइट में चढ़ना है, क्योंकि अगर हम वहां सिलेक्ट हुए हैं तो पहली बार मुझे फ्लाइट में चढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये सब हम पहले बहुत सोच रहे थे, एक्साइटेड भी थे कि नहीं मुझे यहाँ पर सिलेक्शन होना है, कैसे भी करके। उतना हम सोचे नहीं कि कैसे करना है, लेकिन जो चीज मुझे सिखाया गया है मुझे वही करना है।
तो वही चीज सोच के ही जब मैं वहां पर कंपटीशन खेल रही थी तो ये प्रेशर भी होता है, ऐसे नहीं कि प्रेशर नहीं होता है, प्रेशर भी बहुत था। लेकिन जब हम लोग का ट्रेनिंग के दौरान ही हम लोग को प्रेशर को कैसे कंट्रोल किया जाता है वो सिखाता है। तो उस समय जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो सबसे पहली बार हम जब एयरपोर्ट में एंटर किए तो वो उस दुनिया ही अलग है। हम जिस दुनिया से मैं बिलोंग करते थे वहां से उस दुनिया में जाते ही जब हम फ्लाइट में चढ़े, हम बैठे, तो वहां का जो मेरा, उसके बाद अब जब हम एयरपोर्ट में हम उतरे मलेशिया के एयरपोर्ट में, तो वो एकदम दुनिया, इस दुनिया से वहां एकदम ही अलग है। उसको मुझे एक्सेप्ट करने में मुझे टाइम लगा। वो ऐसे भी नहीं कि ऐसे हम सुनते थे सीनियर लोगों से कि हाँ बाहर में ऐसे होता है, इस वहाँ का कल्चर ऐसा है, सब अलग अलग तरीके से है, हम थोड़ा बहुत सुने थे। लेकिन जैसे हम गांव में शहर, और शहर भी ऐसे नहीं कि हम बहुत ज्यादा घूमे, इस तरह का भी नहीं, गांव से डायरेक्ट शहर से हम इंटरनेशनल में गए, तो वो सब भी हम सोच के हम बहुत खुशी भी महसूस हो रहा है। मैं भगवान को बहुत थैंक्स भी बोल रही थी कि मैंने जो मेहनत किया है उसका अचीवमेंट मुझे आज मिल रहा है। तो वह जो मैं इंटरनेशनल में, वहां पर मुझे फर्स्ट इंडिविजुअल मुझे मेडल मिला और टीम में हम लोग का गोल्ड मिला। तो वो हम बहुत ज्यादा मैं खुश थी। जो मेरे साथ एक हम लोग का गुंजन सर हैं, वो हम लोग का सेक्रेटरी है, वो हम लोग का इंचार्ज बन के गए थे, और साथ जो धर्मेंद्र सर है वो है, क्योंकि एकेडमी की तरफ से उस समय जो मेरा बैच का है वो मेरा इंडिविजुअली मेरा जो मेडल था वो फर्स्ट थी, मैं ही फर्स्ट थी। तो वो इतना एक्साइटेड थी, मतलब जब मेडल मुझे दे रहा था तो इतना इमोशनल हो गई थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे इस तरह का जो वो। और ऊपर से वहां पर जो राष्ट्रीय गीत हम लोग का वहां पर जब गा रहे थे, हम लोग पहले इतना था कि गाना गाना पड़ता था, तो उस समय वहां पर जो हम लोग का फ्लैग उठ रहा था उस समय अपने आप मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, और आंसू, खुशी के आंसू, उसको मतलब क्या, नर्वस मतलब खुशी के भी था, सब मिला जुला के जो था वो बहुत अलग ही एक इमोशनल टच था। वहां से फिर धीरे धीरे हम लोग का वर्ल्ड चैंपियनशिप हम गए जो कि इंग्लैंड में था। वो गर्ल्स जो हम लोग क्वालिफाई, एक्चुअली हम लोग को 16 के अंदर में हम लोग कभी नहीं आते थे, वो वहां पर पहली बार हम लोग वहां 16 के मतलब क्वालिफाई किए, 16 रैंक तक हम लोग क्वालिफाई किए। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि आज इससे पहले जितना भी था वो किसी ने भी नहीं किया। तो वो हमारा जो टीम है वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, लेकिन हम लोग मेडल तक नहीं गए, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। फिर वहां से धीरे धीरे फिर ऐसे आगे फिर और भी बहुत सारा कंट्री खेलने गए, जैसे बैंकॉक हो गया, कोरिया हो गया, तुर्की हो गया, चाइना हो गया, ये सब धीरे धीरे मेरा सफर चलते गया और मेहनत भी साथ में करते गई। फिर उसी बीच में बहुत उतर चढ़ाव हुआ कि मेडल भी जीतती थी, नहीं भी जीतती थी, ऐसे कभी कभी होता था कि हो ही नहीं पाएगा, मेडल एकदम पास में पहुंच के भी हम नहीं जीत पाते थे, ऐसे भी होता था। तो बहुत हताश होती थी, क्यों मेरे साथ ही, क्यों। मैं उस समय भगवान से बहुत मतलब जिसमें फेथ रखती थी तो उसी को बोलते, क्यों भगवान आप मेरे साथ ही ऐसे किए। तो कहते हैं ना कि आपको ठीक आपका काम है कि काम करते रहना, आपका काम है कि आप हमेशा मेहनत करते रहो, फल का चिंता मत करो। तो फिर हम वही सोच के हम बोले नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं सोचना है, फिर आगे मुझे बढ़ते रहना है। फिर हम जैसे मेहनत करते गए तो फिर उसके बाद फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप का ट्रायल में सिलेक्शन हो गए। उस समय मेरा ऐसे परिस्थिति चल रहा था कि बहुत ही खराब, सब कोई मुझे बोल रहा था कैसे हो पाएगा, हम लोग ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें हमारा एक्स्ट्रा टीम मेंबर कोई भी नहीं रहता है। अगर हम लोग का टीम मेंबर 3 ही रहता है, अगर उसमें से किसी को कुछ हो गया तो मतलब हमारा टीम बैक हो जाएगा। तो फिर मेरा उस समय इतना मतलब खराब चल रहा था, मैं ऑफिशियल प्रैक्टिस के दिन भी मेरा एरो टारगेट में नहीं लग रहा था, बाहर में लग रहा था। फिर उस रात को कि मेरा ऐसे हो रहा था, क्योंकि मेरे ऊपर ही, अगर मैं खराब करूंगी मेरा टीम खराब करेगा। तो रूम में जाके अपने आप को शांत किया कि किस लिए क्या हो रहा है क्या नहीं, अपने आप को पूरा मैं बैक में मैं सोचने लग गई कि किस तरह से करना है, कैसे नहीं करना। नर्वस भी थी क्योंकि मेरे ऊपर भी प्रेशर है, ऐसे बात नहीं, अगर मैं खराब करूंगी तो वो अच्छा करेंगे अपनी जगह, मुझे अपनी जगह में अच्छा करना है, खराब का तो कोई उम्मीद ही नहीं है। फिर जैसे 2 दिन बाकी था तो मैं उसी 2 दिन के ही दौरान है मुझे कैसे ठीक करना है, क्या करना है, मैं अपने आप को पूरा सोचने लगी, नहीं कहाँ पर मैं मिस्टेक हो रही हूँ, कहाँ पे नहीं हो रही हूँ। तो अपने आप को करेक्ट करके फिर जब वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब वहां पर हम लोग दूसरा दिन कॉम्पिटिशन जब खेलने गए तो वहां पर मेरा रैंक अपना जो इंडिया टीम है उसका मैं टॉप में थी। तो ये मेरा सोच के बहुत ऊपर है, जो मैं सोच रही थी 2 दिन पहले कि मैं एकदम पूरा नेगेटिव में थी, लेकिन 2 दिन के बाद मैं पूरा पॉजिटिव में आ गई, नहीं मुझसे हो सकता है। अभी तक वो वर्ल्ड चैंपियनशिप, अभी तक जितना भी हमारा इंडियन प्लेयर है वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल तक कोई भी नहीं गया है। तो मैं फर्स्ट लेडी हूँ कि वहां तक गई हूँ, और साथ में हम लोग का टीम भी, हम लोग का सिल्वर मेडल वहां पर जीत के लेके आए हैं, और साथ में ये भी हम लोग ओलंपिक के लिए कोटा लेके आए हैं। तो वो जो वह खुशी है बता नहीं सकती कि हाँ ओलंपिक के लिए है, लेकिन ओलंपिक के लिए हम कोटा तो लेके आए हैं, लेकिन तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ है।
उस चीज को कैसे मुझे उसके हम लोग का 1 साल बाकी है कि ओलंपिक के लिए कैसे जाना है। उसके बाद हम लोग का ट्रायल होते गया उस पीरियड में मैं अपने आप को बहुत कॉन्शियस में रखती थी। ऐसे नहीं कि पॉजिटिव भी है और नेगेटिव दोनों तरफ भी है। खाना से लेके पीने से लेके मुझे कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है, कितना सोना है, मुझे क्या खाना है, कहाँ जाना है, किधर नहीं, सब अपने रूटीन के दौरान है। क्योंकि उसमें जैसे ज्यादा ठंडा नहीं खाती थी कि मेरा गला खराब हो जाएगा, या जैसे होते ना हम लोग फास्ट फूड ज्यादा नहीं खाती थी कि मेरा पेट खराब हो जाएगा। अगर मेरा पेट उस दौरान खराब हो गया तो मैं टीम से पूरा बैक कर जाऊंगी। जो मैंने मेहनत किया, जो मैंने कोटा लेके आया है, वो मेरा पूरा खत्म हो जाएगा। फिर 4 साल मुझे वेट करना पड़ेगा। ये भी गारंटी नहीं है कि 4 साल में हम टीम में आऊंगी कि नहीं आऊंगी, क्वालिफाई होगा कि नहीं होगा, ये भी कोई गारंटी नहीं। इसलिए अपने आप को बस उस चीज में ही मैंने अपने आप को समेट कर रखा, नहीं मुझे टीम में घुसना है। सुबह शाम उठते साथ मैं सोते समय खाली एक ही माइंड में सोचती थी, नहीं मुझे टीम में जाना है, टीम में जाना है। अपने आप को विजुअलाइजेशन करती थी, नहीं मैं वहां पर ओलंपिक में वहां पर लाइन में खड़ा होकर मैं एरो मार रही हूँ, मैं मेडल जीत रही हूँ। अपने आप को विजुअलाइजेशन में वो रखती थी। मतलब सुबह शाम उसी के बारे में ही सोचती, ज्यादा कुछ नहीं सोचती, बस वही चीज है। सोते समय ही जब मैं रिलैक्सेशन करती थी तब भी अपना पूरा माइंड को उस हिसाब से ओलंपिक का पूरा अपने माइंड में सेटअप करके रखी थी। इस तरह से मैं जा रही हूँ, वहां पर मैं खाना खाने जा रही हूँ, वहां दोस्त के साथ बात कर रही हूँ, वहां खेल रही हूँ, मेडल जीत रही हूँ। अपने विजुअलाइजेशन में मेरा पूरा अंदर ही चल रहा है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था ओलंपिक के लिए, उस जो लास्ट जो हम लोग ओलंपिक के पहले का जो ट्रायल था, ऐसा उस समय लग रहा था कि हम ओलंपिक का ट्रायल दे रहे कि कहाँ पे है मुझे पता नहीं चल रहा था। मतलब वो प्रेशर जो है मेरे ऊपर इतना हावी हो गया था। जो चीज हम शॉर्ट हमें येलो में मानना चाहिए, जैसे हम लोग रिंग होता है, येलो होता है, रेड होता है, वो हमारा पॉइंट वाइज है। मैं वहां तक बुल में मैं शूट नहीं कर पा रही थी। मतलब इतना प्रेशर था कि नहीं होगा कि नहीं होगा। वहां पर ऐसे समय था कि नहीं, मतलब दोनों तरफ है, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी, नहीं होगा कि नहीं। क्योंकि मैं बहुत नजदीक थी कि अगर हम ये थोड़ा भी अगर इधर एरो जाएगा तो हम बाहर निकल जाएंगे टीम से, अगर ये थोड़ा अंदर जाएगा तो हम इन हो जाएंगे। तो ऐसे हो गया था, मेरा शरीर बहुत कांपने लग गया था, इतना वाइब्रेशन हो गया था मेरा, वो मतलब मेरा हाथ में पसीना आ गया था, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। लेकिन थोड़ा सा अपने आप माइंड को शांत किए, गहरी सांस लेके फिर जब मैंने लास्ट शॉट किया तो मेरा बुल में लगा, तभी जाके ही मेरा सिलेक्शन हुआ। तो जो उस समय जो मेरा ओलंपिक का जो सिलेक्शन का पीरियड के दौरान जो था, बहुत खुश थी। पहली थी, मतलब पहली बार मैं जा रही हूँ ओलंपिक खेलने के लिए, बहुत सपना था। पहले मुझे ओलंपिक के बारे में पता ही नहीं था। जब धीरे धीरे उसके बारे में पता चला, हमारा बोलते हैं ना कि वो हमारा एक लास्ट स्टेज है। वो जिस समय मैं ओलंपिक में गई थी खेलने के लिए ब्राजील में, वो दुनिया ही अलग है। जैसे हम जितना भी मैं टूर्नामेंट खेली हूँ, वो टूर्नामेंट और ओलंपिक का टूर्नामेंट ही अलग है। वो हर एक दिन हम लोग का एक एक मैच होता है। जब मैं पहली बार वहां पर गई थी जब खेलने के लिए, जब हम लोग झूला झूलते हैं ना, जब झूला जब नीचे तरफ आता है, हमारा बॉडी वेट कैसे अप हो जाता है ना, वैसे ही हो गया। मेरा शरीर में मेरा प्राण नहीं था, इस तरह का लगता है। वहाँ का जो माहौल है, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर लोग रहते हैं, दूसरा कंट्री का एक मेला लगता है हमारा वहाँ पे। हमारा वहाँ का जो डाइनिंग हॉल है, वहाँ का हम लोग का स्पोर्ट्स जो वेन्यू है, वो अलग तरह का ही है। तो फिर सोचिए, ओ हमारा ये है ओलंपिक का। इसीलिए बोलते हैं जब एकदम लेजेंड लोग वहाँ पे थे, जो मेडल जीत चुके हैं वहाँ पे, रोनाल्डो, वो सब कोई आया था, हर एक गेम का आया हुआ था। तो उन लोग के साथ उठना बैठना, मुझे वहां पर अपने आप को मिल के, जैसे होता ना हम लोग को आईफ अवार्ड में जाता है कारपेट में, वैसे हम लोग का वो प्लेटफॉर्म है। जब मैं वहां पर गई थी कंप्लीट करने के लिए, तो वो खुशी, वो माहौल, वो एकदम अलग ही है। शायद वो जब कोई जाएगा ओलंपिक तो उसको पता चलेगा कि वहां कैसे लगता है उस जगह पे। हम लोग ब्रॉन्ज मेडल पहले हम लोग का एक्चुअली रैंक 5 था, हम लोग ब्रॉन्ज मेडल में हार गए। जब हम लोग हार गए तभी नहीं पता चल रहा था कि हाँ हम हारे हैं कि, और ऐसे मुझे उस समय लग रहा था नहीं मैच अभी भी बाकी है, लेकिन एक्चुअली हम लोग उस समय मैच हार गए थे। ऐसे था उस समय है कि मुझे मेरे सामने में कौन है वो भी पता नहीं चल रहा, जो मेरे पीछे है वो भी मुझे पता नहीं चल रहा था। ओलंपिक का एकदम ही अलग ही लेवल है। जैसे हम लोग यहाँ जितना भी हम खेले हैं ये स्पोर्ट्स में, जितना भी मैंने अचीवमेंट किया है, लेकिन ओलंपिक का कुछ अलग ही है, उसका लेवल ही अलग है। इसीलिए बोलते हैं कि हाँ ओलंपिक, इसीलिए ओलंपिक के लिए हम लोग क्वालिफाई करना पड़ता है। हमारा 200 कंट्री जाता है पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें से खाली 14 कंट्री ही पार्टिसिपेट करता है ओलंपिक के लिए। उसमें 64 ही प्लेयर पार्टिसिपेट करता है। हम लोग का जब क्वालिफाई होता है, क्वालिफाई में हम लोग का बहुत क्या बोलेंगे, बोलते हैं ना
कि अपना जो गुड लक, और ओलंपिक में जितना भी हम लोग खेलते हैं वहां पर कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर रहता है। जो अपने ऊपर जिसका कंट्रोल है वही जीतता है लास्ट में। मुझे वहां पर एक सीख मिला कि उस समय ऐसे था कि जो मेरा जो प्रेशर था उसमें मैं बहुत प्रेशर में थी, बहुत ही ज्यादा थे। वो थोड़ा सा मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो अदरवाइज हम लोग शायद मेडल जीत भी जाते। Thank you, ma'am. You really inspire us all. Moving towards the end, we have a short presentation on one of the eminent sports person, Major Dhyan Chand, a jewel of India. दास्तान है हिंदुस्तान के एक ऐसे हुनरमंद की जिसने सारी दुनिया में रोशन किया मुल्क का नाम। इस महान शख्सियत के साथ ही शुरू होता है हिंदुस्तान में हॉकी का सफर। मेजर ध्यानचंद एक ऐसा नाम जिस पर है हर देशवासी को नाज, जिसको कहा गया अपने फन का जादूगर और जिसके इशारों पर नाचती थी हॉकी। हिंदुस्तान की हॉकी हमेशा मेजर ध्यानचंद की कर्जदार रहेगी। वो गुलाम हिंदुस्तान था। नई सदी गोरी हुकूमत का बड़ा क्रूर चेहरा लेकर आई थी। उस दौर में खेलकूद, साहित्य और कलाओं को अपना फुल टाइम देने की बात आम आदमी सोच भी नहीं सकता था। जिन परिवारों के पास अपनी जमीन या अपना कारोबार नहीं था, उन्हें घर चलाने में बड़ी मुश्किल आती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की उन दिनों देश भर में 190 रेजिमेंट हुआ करती थी। इनमें से एक थी फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, जो इलाहाबाद में तैनात थी। ये 129 साल पुरानी रेजिमेंट थी और अवध के नवाब ने बनाई थी। बाद में इसका नाम फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट कर दिया गया। पहले विश्व युद्ध में इस रेजिमेंट ने बड़ी बहादुरी दिखाई थी। रेजिमेंट के सूबेदार सोमेश्वर सिंह के परिवार में 29 अगस्त 1905 को एक बेटा आया। नाम रखा गया ध्यान सिंह। इसी ध्यान सिंह को दुनिया ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के रूप में जाना। ध्यानचंद के दो भाई थे, मूल सिंह एवं रूप सिंह। रूप सिंह भी ध्यानचंद की ही तरह अच्छी हॉकी खेला करते थे। 1922 में 16 साल की उम्र में ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही बन गए। आर्मी में आने के बाद ध्यानचंद ने हॉकी खेलना अच्छे से शुरू किया और उन्हें यह खेल पसंद आने लगा। सूबेदार मेजर भोले तिवारी, जो ब्राह्मण रेजिमेंट से थे, वे आर्मी में ध्यानचंद के मेंटोर बने और उन्हें खेल के बारे में बेसिक ज्ञान दिया। वहीं पंकज गुप्ता ध्यानचंद के पहले कोच कहे जाते थे। उन्होंने ध्यानचंद के खेल को देखकर यह कह दिया था कि एक दिन यह खिलाड़ी पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकेगा। उन्हीं ने ध्यानचंद को चंद नाम दिया। इसके बाद उनके करीबी उन्हें इसी नाम से पुकारने लगे। इसके बाद ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। 1926 में न्यूजीलैंड में होने वाले एक टूर्नामेंट के लिए ध्यानचंद का चुनाव हुआ। यहाँ एक मैच के दौरान भारतीय टीम ने 20 गोल कर दिए थे, जिसमें से 10 तो ध्यानचंद ने ही किए थे। इस टूर्नामेंट में भारत ने 21 मैच खेले थे, जिसमें से 18 में भारत विजयी रहा, 1 में हार मिली तथा 2 ड्रॉ हुए। भारतीय टीम ने पूरे टूर्नामेंट में 192 गोल किए, जिनमें से ध्यानचंद ने ही 100 गोल मारे थे। यहां से लौटने के बाद ध्यानचंद को आर्मी में लांस नायक बना दिया गया। साल 1927 में लंदन के फोक्सटोन फेस्टिवल में भारत ने 10 मैचों में 72 गोल किए, जिसमें से ध्यानचंद ने 36 गोल किए थे। मेजर ध्यानचंद ने भारत को ओलंपिक में 3 बार गोल्ड मेडल दिलवाया। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में, 1932 में लॉस एंजलिस में और 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में। ओलंपिक शुरू होने के लगभग 1 महीने पहले भारतीय टीम और जर्मनी ने 17 जुलाई 1936 को एक अभ्यास मैच खेला था। इस मैच में भारत के पास अली दारा, अहमद खान और ध्यानचंद जैसे धुरंधर खिलाड़ी थे। बावजूद इसके ये मैच भारत जर्मनी से नहीं जीत सका। इस मुकाबले में जर्मनी ने भारत के खिलाफ 4 गोल किए, वहीं भारत सिर्फ 1 ही गोल कर पाया। ओलंपिक से ठीक पहले भारतीय टीम का इस तरह हारना कप्तान ध्यानचंद के लिए चिंता का विषय था। कहते हैं कि इस हार के बाद वे पूरी रात नहीं सो पाए। उन्हें इस बात का डर सताने लगा था कि कहीं ओलंपिक में भारत के सिर से हॉकी में बादशाहत का ताज ना छिन जाए।
हालांकि सुबह होते ही उन्होंने अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे की रणनीति बनाई। जल्द ही वे अपनी पूरी टीम को ओलंपिक के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में सफल रहे। ध्यानचंद की अगुवाई में टीम एकदम नई और तरोताजा लग रही थी। तेजी से वक्त बीता और ओलंपिक भी आ गया। 5 अगस्त 1936 को भारतीय टीम को हंगरी का सामना करना था। दोनों टीमें मैदान पर उतरी तो भारतीय खिलाड़ियों में एक अलग किस्म की ही ऊर्जा देखने को मिली। उन्होंने शानदार खेल दिखाते हुए अपने पहले ही मैच में हंगरी को 4 गोल से पीट दिया। आगे भी उनकी जीत का सिलसिला जारी रहा। 7-0 से यूएस और 9-0 से जापान को हराने के बाद वे सेमीफाइनल में पहुंच चुके थे। वहां भारत ने फ्रांस को 10-0 से मात देकर दुनिया को यह बता दिया था कि वे गोल्ड लेकर ही जाएंगे। इस मुकाबले के असली हीरो ध्यानचंद ही थे। उनकी अगुवाई में भारत फाइनल मुकाबला खेलने जा रहा था। भारतीय टीम की तर्ज पर जर्मनी भी अपने विजय रथ के साथ आगे बढ़ी और फाइनल तक पहुंच गई। जर्मनी का क्रूर तानाशाह हिटलर जर्मनी के प्रदर्शन से बहुत खुश था। उसने फाइनल मुकाबले के लिए पूरे जर्मनी को बदल डाला। स्टेडियम के आसपास के इलाकों में खास किस्म के इंतजाम किए गए। सभी को जर्मनी की टीम का हौसला बढ़ाने के लिए स्टेडियम पहुंचने का आदेश दिया गया। हिटलर ने सुनिश्चित किया कि वो इस फाइनल मुकाबले में खुद भी मौजूद रहेगा। वो किसी भी कीमत पर जर्मनी को जीतते हुए देखना चाहता था। दूसरी तरफ ओलंपिक शुरू होने से पहले ही एक अभ्यास मैच में जर्मनी भारत को हरा चुका था, इसलिए उसके हौसले बुलंद थे। वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त लग रहा था। हालांकि भारतीय टीम भी खुद को कमजोर मानकर नहीं चल रही थी। कप्तान ध्यानचंद समेत सभी खिलाड़ी आत्मविश्वास से लबरेज थे। यूं तो भारत और जर्मनी को 14 अगस्त को एक दूसरे से भिड़ना था, पर ऐन मौके पर तेज बारिश ने सारा मामला खराब कर दिया। मैदान पूरी तरह खराब हो चुका था, इसलिए मैच को टाल दिया गया। तय किया गया कि अब यह मुकाबला अगले दिन यानी 15 अगस्त को खेला जाएगा। मैच शुरू होने से पहले भारतीय खिलाड़ी थोड़ी चिंता में दिखे, पर जब वे मैदान पर उतरे तो उन्होंने तेवर बदल लिए। उन्हें पता था कि यह मैच बहुत ही महत्वपूर्ण था। मुकाबले के कुछ मिनट पहले कप्तान ध्यानचंद ने सभी खिलाड़ियों से बात की और उनमें नई जान फूंकने का काम किया। रेफरी के इशारे के साथ भारतीय टीम मैच को जीतने निकल पड़ी। पहले मिनट से ही जर्मनी के खिलाड़ियों को यकीन नहीं हो रहा था कि वह उसी टीम के साथ खेल रहे हैं जिसे उन्होंने अभ्यास मैच में बड़े अंतर से हराया था। मेजर ध्यानचंद तो कुछ इस तरह गेंद को अपनी हॉकी से लेकर दौड़ रहे थे जैसे मानो गेंद को उन्होंने हॉकी से चिपका कर रखा हो। देखते ही देखते भारतीय टीम ने एक के बाद एक गोल दागने शुरू कर दिए। मैच में एक पल ऐसा भी आया जब पूरे मैदान पर सन्नाटा छा गया। भारतीय टीम जर्मनी को उसी के मैदान पर पीटकर विश्व विजेता बनने जा रही थी। जर्मन खिलाड़ियों के चेहरों पर हार का भाव साफ तौर पर देखा जा सकता था। वे सुस्त पड़ चुके थे। इसी बीच भारतीय टीम ने अपना आखिरी गोल दागकर 8-1 के बड़े अंतर से यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। मैदान पर मौजूद सभी की नजरें भारतीय टीम के ऊपर टिकी हुई थीं, खासकर कप्तान ध्यानचंद पर, जिन्होंने इस मुकाबले में अकेले 6 गोल दागकर हिटलर का जर्मनी को अपनी आंखों से जीतते हुए देखने का सपना तोड़ दिया था। सब लोग अपनी कुर्सियों से खड़े होकर उनके अभिवादन में तालियां बजा रहे थे। ध्यानचंद को अपनी टीम पर गर्व था क्योंकि उन्होंने अपने देश भारत की लाज रख ली थी। साथ ही भारत को ओलंपिक में एक और गोल्ड दिलवाया। इस हार के बाद पूरे स्टेडियम में शांति छा गई। सबकी नजरें हिटलर की तरफ थीं कि अब वो क्या करेगा। वो किसी भी कीमत पर यह मैच जीतने वाला था। लोगों को लग रहा था कि कहीं वो आग बबूला होकर तानाशाही का कोई नया उदाहरण न पेश कर दे, पर हिटलर किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। हिटलर ध्यानचंद के खेल से बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। वो जल्द से जल्द भारतीय टीम के कप्तान मेजर ध्यानचंद से मिलना चाहता था। तेजी से वो भारतीय टीम को सम्मान देने के लिए मंच पर पहुंचा और आगे बढ़ते हुए मेजर ध्यानचंद को पदक पहनाया। ध्यानचंद पुरस्कार लेकर जाने लगे तो उसने ध्यानचंद को टोकते हुए कहा, रुको। उसने अपना हाथ बढ़ाते हुए ध्यानचंद से हाथ मिलाया और कहा कि मैंने इससे पहले तुम्हारे जैसा कोई भी खिलाड़ी नहीं देखा। तुम्हारे हाथों और स्टिक में जादू है। तुम हॉकी खेलने के अलावा क्या करते हो? मेजर ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भारतीय सेना में लांस नायक हूँ। इस पर हिटलर ने कहा, तुम जर्मनी आ जाओ, मैं तुम्हें फील्ड मार्शल बना दूंगा। उस समय सेना का बहुत बड़ा पद था। ध्यानचंद हिटलर के प्रस्ताव को सुनकर हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। फिर भी उन्होंने हिटलर से कहा, माफ करें, भारत मेरा देश है और मैं वहीं ठीक हूँ। भारत मेरी मातृभूमि है और मैं हमेशा भारत के लिए ही खेलूंगा। हॉकी के जादूगर के शब्दों को सुनकर हिटलर उनसे और ज्यादा प्रभावित हुए। इस तरह मेजर ध्यानचंद भारत के लिए गोल्ड जीतने के साथ साथ हिटलर का दिल जीतने में भी कामयाब रहे। हिटलर ने उन्हें सम्मान के साथ विदा किया था।
हिटलर जैसे तानाशाह के सामने भी भारत को सर्वोपरि मानने वाले ध्यानचंद के जज्बे को हम सलाम करते हैं। वे भले ही हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन खेल जगत में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। इसी बीच हिंदुस्तान आजाद हुआ। आजादी के बाद अफ्रीकी देशों की ओर से भारतीय टीम को हॉकी खेलने का निमंत्रण मिला। 6 दिसंबर 1947 को ध्यानचंद की कप्तानी में टीम पूर्वी अफ्रीका के लिए समंदर के रास्ते रवाना हो गई। 15 दिसंबर को टीम मोम्बासा पहुंची। वहां 28 मैच खेले और सारे जीते। उस दौर के अफ्रीका में सितारों की तरह ध्यानचंद की टीम का स्वागत किया गया। ध्यानचंद के लिए शायद यही आखिरी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज थी। ध्यानचंद को हॉकी के प्रति योगदान पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 29 अगस्त यानी आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। यह दिवस हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनकी जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान और कालजयी हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह, जिन्होंने न सिर्फ भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक दिलाया, बल्कि हॉकी को एक नई ऊंचाई तक ले गए। मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ था। क्रिकेट में जो स्थान डॉन ब्रैडमैन, फुटबॉल में पेले और टेनिस में रॉड लेवर का है, हॉकी में वही स्थान ध्यानचंद का है। 1948 में 43 साल की उम्र में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया। विश्व हॉकी जगत के शिखर पर जादूगर की तरह छाए रहने वाले मेजर ध्यानचंद का 3 दिसंबर 1979 को देहांत हो गया। हॉकी के इस महान खिलाड़ी के मुरीद दुनिया भर में आपको मिल जाएंगे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ध्यानचंद के बड़े प्रशंसक हैं। मोदी ने ध्यानचंद को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया। प्रधानमंत्री ने अपने लोकप्रिय रेडियो शो मन की बात में भी ध्यानचंद का जिक्र कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी की जन्मतिथि है। यह दिन पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। मैं ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि देता हूं और इस अवसर पर आप सभी को उनके योगदान की याद भी दिलाना चाहता हूं। उन्होंने 1928 में, 1932 में, 1936 में ओलंपिक खेलों में भारत को हॉकी का स्वर्ण पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हम सभी क्रिकेट प्रेमी ब्रैडमैन का नाम जानते हैं। उन्होंने ध्यानचंद जी के लिए कहा था, ही स्कोर्स गोल्स लाइक रन्स। ध्यानचंद जी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और देशभक्ति की एक जीती जागती मिसाल थे। एक बार कोलकाता में एक मैच के दौरान एक विपक्षी खिलाड़ी ने ध्यानचंद जी के सर पर हॉकी मार दी। उस समय मैच खत्म होने में सिर्फ 10 मिनट बाकी था और ध्यानचंद जी ने उन 10 मिनट में 3 गोल कर दिए और कहा कि मैंने चोट का बदला गोल से दे दिया। मेजर ध्यानचंद और हॉकी की दास्तान हमेशा याद करेगा हिंदुस्तान। Now, bringing to you all an excellent effort and inspiration in this pandemic of how we can keep ourselves mentally and physically fit. This is a great inspiration from our team KB Chittaranjan. जय जय
जय जय जय जय जय हो जय 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 जय। फिर से शहरों में रौनक आएगी, फिर से गाँव में लौटेगी हंसी, फिर से साथ सारे यार होंगे, ना होगी पाबंदी ना रोक ही कोई, फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ देते सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा 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 इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत, भारत तभी स्वस्थ बनेगा जब हम सब स्वस्थ होंगे, और इसके लिए हम सबको फिट रहना होगा, और ये तभी संभव है जब आप सभी सही खान पान के साथ नियमित एक्सरसाइज करें और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। जी हाँ, फिट इंडिया, कोरोना फ्री इंडिया।